Dear students, Assalamu alaikum. We have lecture number 3 of the globalization. In our today's lecture, we will discuss in detail a brief history of globalization. We will discuss what are the waves of globalization because the globalization passed through a number of stages. So, in this lecture, we will discuss the three waves of globalization. We will discuss from where the globalization was started and where it stands. Alexander escalation. Students, the globalization actually started from the period of the Alexander's conquest. उसी ज़माने से जो अलेक्जेंडर का पीरियड था उसने जब ईस्ट और वेस्ट को कनकर किया तो वहाँ से ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट हुआ Alexander's campaign greatly increased contacts and trade between the east and west. So जब अलेक्जेंडर ने ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंट एरियाज को कांटेक्ट कनकर किया तो लोगों के दरमियान कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए और इन्हीं कॉन्टैक्ट्स की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है तो वो स्टार्ट हुआ एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट जो है वो अलेक्जेंडर की जो एक्सपीडिशंस थी तो उससे स्टार्ट हुआ Successor states remained dominant for next 300 years during the Hellenistic period. और फिर उसी जो ग्रीस पीरियड था तो उसमें तकरीबन 300 इयर्स तक ये जारी रहा और ये कनकेस्ट जारी रही और जो इनकी एक्सपेंशन थी स्टेट की और इनकी प्रोपेगेशन ऑफ द लैंग्वेज और कल्चर था तो वो जारी रहा Alexander founded 20 cities that bore his name, and these cities became centers of culture and diversity. The most famous of these cities is Egypt's port of Alexandria. तो स्टूडेंट्स इसने तकरीबन अलेक्जेंडर ने 20 सिटीज़ को वो बुनियाद उसकी रखी थी और फिर उसी कॉन्क्वेस्ट के बाद इवन उसकी डेथ के बाद भी ये जो सिटीज़ हैं ये कल्चर्स और डाइवर्सिटी का सेंटर रही और इसमें द मोस्ट फेमस जो है वो मिस्र का इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया है First century Silk Route, first century BC, 5th century AD, and 13th, 14th centuries. Silk routes, you have this was another addition. Uh, so far, the globalization is concerned. For the first time in the history, luxury products from China started to appear to the other edge of the region continent in Rome. यहाँ से फिर एक और तारीख का आगाज हुआ जब चाइना ने ट्रेड करना शुरू कर दिया सिल्क रूट के थ्रू रोम के साथ ट्रेड trade had stopped being a local or regional affair and started to become global. चाइना की जो ये ट्रेड थी चाइना का जो ये ट्रेड था तो दिस वाज एन एडिशन टू ग्लोबल ट्रेड और अलेक्जेंडर के बाद ये चाइना का बड़ा रोल है ट्रेड की जो डेवलपमेंट है उसमें Spice routes 7th to 15th centuries. Yet this new religion spread in all directions from its Arabian heartland in 7th century saw trade. इस्लाम की एक्सपेंशन जब स्टार्ट हुई अरेबियन रीजन में तो चूंकि जो फतूहात थी मुस्लिम पीरियड में तो वो कई कॉन्टिनेंट्स तक स्प्रेड हो गई थी तो इसी वजह से ट्रेड भी बड़े एरिया में दुनिया के एक बड़े हिस्से में ट्रेड वो फैल गया By the early 9th century, Muslim traders already dominated the Mediterranean and Indian Ocean trade. Afterward, they found as far east as Indonesia, which over time became a Muslim majority country, and as far west as Mauritius and Spain. ये लोग जो मुस्लिम थे तो मुस्लिम ट्रेडर्स ने तकरीबन जो है वो यूरोप में भी मगरब में यूरोप में ये तजारत स्टार्ट कर दी इंडियन ओशन में और जो बहर रोम है वहाँ पे मीन्स के ईस्ट और वेस्ट दोनों में मुस्लिम पीरियड में एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेड हुई 15th to 18th century was another period of the trade development
Uh, because in this era, the end of 15th century onward, the European explorers connected East and West and accidentally discovered the America. अमेरिका भी 16th century में ये इस 15 to 18th century इसी पीरियड में अमेरिका भी डिस्कवर हुआ था और ये डिस्कवरी जो है वो ये कोलंबस ने की थी और इससे प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन खत्म हो गया और अमेरिकन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ. But the most consequential exploration was the Magellan. It opened the door to the Spice Island, cutting out the Arab and Italian middlemen. Students, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी ट्रेड की. Now we come to the waves of globalization. तो डिटेल्स से तो ये फिर किसी और लेक्चर में हम करेंगे. यहाँ पे एक शॉर्ट प्रीव्यू देते हैं क्योंकि लेक्चर को काफ़ी लंबा भी हम नहीं कर सकते, तो टाइम लिमिटेशन को देखते हुए हम इनके मेजर पॉइंट डिस्कस करते हैं. First wave of globalization, 19th century to 1914. The first wave of globalization roughly occurred over the century in ending 1914. By the end of 18th century, the Great Britain had started to dominate the world both geographically and through the establishment of British Empire and technologically with innovations like the steam engine, the industrial weaving machine and more. तो व्यूवर्स 18th सेंचुरी जो है वो चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो इस पीरियड में ब्रिटेन ने कनकेस्ट भी की. जो इंडो पाक है तो वो उसकी तसल्लुत में आया, मैं उसको तसल्लुत कह सकता हूँ, उसकी डोमिनेशन में आया और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत सारी इन्वेंशंस हुई. चूंकि ये मशीन इन्वेंशन का पीरियड था तो स्टीम इंजन और बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो मशीनें हैं वो इस पीरियड में जो है वो इनोवेट हुई. The British Industrial Revolution made for fantastic twin engine of the global trade. On one hand, the steamships trains could transport goods over thousands of miles, both within the countries and across the countries. ब्रिटिश इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ने स्टूडेंट्स दो काम किए. एक तो ये था कि स्टीम और जो स्टीम शिप्स आ गई और ट्रेन्स आ गई जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट बड़ा आसान हुआ और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स को कवर करना. अब चूंकि ये ट्रेन्स वगैरह आ गई थी और स्टीम शिप्स आ गई थी तो अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो गया. जबकि दूसरी तरफ इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन अलाउड ब्रिटेन टू मेक प्रोडक्ट्स दैट वर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक टेक्सटाइल, आयरन, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में भी बताया, बल्कि इसी स्लाइड में आपको बताया कि इस पीरियड में ये हुआ कि कुछ जो मशीनरी वगैरह थी तो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, नई मशीनें बनी. तो जो आयरन है, लोहे को शेप देकर मशीनें बनाना और टेक्सटाइल ने डेवलपमेंट की और कई मैन्युफैक्चर गुड्स जो हैं क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा यूरोप में हो रही थी तो अक्रॉस द वर्ल्ड इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी, तो ब्रिटेन ने ग्लोबल ट्रेड को एक्सेलरेट किया. With this advanced industrial technology, Britain was able to take a huge and rapidly expanding international market. The trend globalization was obvious in numbers. For about a century, the trade grew at an average 3%. That growth propelled exports from 6% of GDP in the early 19th century to 14% on the eve of the World War I. तकरीबन एक सेंचुरी तक जो है वो ट्रेड 3% पे इंक्रीज होता गया, लेकिन इस 19th सेंचुरी में ये जो ब्रिटेन रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो एक्सपोर्ट्स थी 6% ऑफ ग्लोबल जीडीपी से ये इंक्रीज होके 14% ऑफ द जीडीपी बन गई 1914 तक. Instead of Keynes, the inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea in the bed, the various parts of the whole earth in such a quantity as he might see fit, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep. कीन्स कहते हैं कि अब लंदन में चूंकि इकेनेजियन पीरियड की बात है, इन्वेंशंस हो रही थी, तो जो फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन था, अब उसके बारे में ये कीन्स के बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं कि अब लंदन में एक बंदा बैठा हुआ है तो वो सुबह अपना चाय पी रहा है अपने बेड पे, तो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड वो कर सकता है, जितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए तो वो फोन पे उसको जो है वो ऑर्डर कर सकता है.
Those with the means in the New York, Paris, London, Berlin could invest internationally active giant stock companies. टेलीफोन के जरिए अब आप एक मुल्क में बैठे हुए हैं लेकिन दूसरे मुल्क में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. By end of 19th century, the most globalization industrialized European nations great for a piece of Africa, and by 1900, the only independent country left on the continent was Ethiopia. फिर 19th सेंचुरी में ये भी हुआ कि जो अफ्रीकन कंट्रीज थे तो उन पे जो है वो डोमिनेशन आ गई थी यूरोपियन कंट्रीज की सिवाय इथोपिया के. And similarly negative when large countries like India, China, Mexico, Japan, which were previously powers to reckon with, were not either able to or not allowed to adapt to the industrial and global trends. अब चाइना, इंडिया, मेक्सिको जैसे कंट्रीज जो हैं इनको भी जो है वो ग्रोथ का चांस न मिल सका. Either the Western powers put restraint on their independent development or they were otherwise uh, outcompeted because of their lack of access to capital or technology. तो इंडिया, चाइना, मेक्सिको या जापान जो है ये पीछे इसलिए रह गए या तो इनके लिए कंस्ट्रेंट्स थी या वो कंस्ट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी भी थी. Finally, many workers in industrialized nations also did not benefit from globalization. Their work committed by industrial machinery or commoditized by industrial machinery or their output undercut by foreign exports. तो एक और मसला हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तो उसमें इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने ज़्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं लिया क्योंकि या तो जो फॉरेन इनकी इंपोर्ट्स थी, इनकी जो एक्सपोर्ट थी वो कट हो गई या जो मशीनरी थी तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना कर सके. द सेकेंड एंड थर्ड वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फिर उसके बाद ये फर्स्ट वेव तो 1914 में ख़त्म हो गया. फिर हम सेकेंड और थर्ड वेव को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. The end of the World War II marked a new beginning for the global economy. Under the leadership of United States uh, and the technologies of the second industrial revolution like the car, plane and global trade started to rise once again. Second World War के बाद जो है अमेरिका लीड करने लगा दुनिया को और फिर और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, गाड़ी आ गई, एयरप्लेन आ गया, कार आ गई. इससे ग्लोबल ट्रेड और भी एक्सेलरेट हुआ. At first, this happened in two separate tracks as the Iron Curtain divided the world into two spheres of influence. But as 1989, when the Iron Curtain fell, globalization became a truly a global phenomena. फिर यहाँ पे वो दीवार बर्लिन का वाक़या हुआ था. फिर 1989 में वो ख़त्म हो गया तो फिर ग्लोबलाइजेशन थोड़ी सी और भी स्पीड अप हुई. In the early decades of the World War II, institutions like European Union and other free trade vehicles championed by the US were responsible for much of increase in the international trade. In the Soviet Union, there was a similar increase in the trade, albeit through centralized planning rather than the free market. तो रशिया ने अपनी प्लानिंग की, यूरोप ने अपनी प्लानिंग की, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद नो डाउट कि ट्रेड इंक्रीज हुआ. Worldwide trade once again rose to the 1914 level in 1989, which again 14% of global GDP. 1989 में फिर जो ट्रेड है इतना इंक्रीज हुआ कि ये 14% ऑफ द जीडीपी बन गया. क्योंकि इस पीरियड में क्योंकि इस पीरियड में then when the wall dividing the East and West fell and Germany and the Soviet Union collapsed, globalization became all-conquering force. सोवियत यूनियन का फॉल हुआ, वो कोलैप्स हुआ. फिर उसके ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, क़ज़ाक़स्तान, अज़रबैजान ये जो हम कंट्रीज देखते हैं तो ये अलग हो गए. ईस्ट वेस्ट जर्मनी में जो दीवारें बर्लिन थी तो वो ख़त्म हो गई. सो ये भी ट्रेड लिबरलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में एक एडिशन था. The newly created WTO encouraged nations throughout the world to enter into free trade agreements, and most of them did, including many new independent states. The WTO, you know that from 1995, the WTO was implemented, and almost most of the countries joined it, uh, which liberalized the trade and which accelerated the pace of the globalization.
In 2001, even China became a member of WTO and started to manufacture for the world. In this new world, the US set tone and led the way, but many others benefited in this slipstream. At the same time, a new technology from the third industrial revolution, the internet, connected people all over the world in even more direct way. फिर ये इसमें ये एडिशन हुई कि डब्ल्यूटीओ ने अपना रोल प्ले किया डब्ल्यूटीओ के बाद यूएस ने भी अपना रोल प्ले किया लेकिन जो एक रिवोल्यूशन हम कहते हैं थर्ड रिवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं थर्ड वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहते हैं दैट वाज द इंटरनेट क्योंकि इसने राउंड द वर्ल्ड दुनिया को कनेक्ट किया or in the orders of the Keynes could be placed by phone in 1914 could now be placed over the internet और फिर ये Keynesian जो एक स्टेटमेंट हमने शेयर की थी कि आप घर में बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं तो यहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हैं टेलीफोन पे दुनिया में किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए अपनी मर्जी की क्वांटिटी के लिए यू कैन डू द सेम नो थ्रू द इंटरनेट आप पाकिस्तान में आप बैठ के जो है ना वो अमेज़न पे ऑर्डर कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, दराज़ से कुछ भी मँगवा सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी मँगवा सकते हैं, एक क्लिक से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से। Instead of having them delivered in a few weeks, they could arrive at one's doorstep in few days. One was more, the internet also allowed for further global integration of the value chains. In 2000, the global exports reached a milestone as they were about one quarter of the GDP. Trade, the sum of the imports and exports consequently grew to half of the world GDP. In some of the countries like Singapore, Belgium, and others, trade is worth more than 100% of the GDP. बहुत सारे कंट्रीज ने इससे बड़ा फायदा ग्लोबलाइजेशन से उठाया और 100% तक जीडीपी उन्होंने इससे हासिल की. A majority of the global population has benefited from this. Once people, more people than ever before belong to global middle class, and hundreds of millions achieved their status by participating in the global economy. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हम ओवरव्यू दे सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वेव का. पीरियड यहाँ पे मेंशन है 1860 to 1914, 1944 to 71 and 1989 and फिर ये 2000 के डिकेड में तो फोर्थ ग्लोबलाइजेशन 4.0 है लेकिन ये तीन की हम देते हैं कि टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई स्टीम इंजन टेलीग्राफ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल कंबशन इंजन ये 1860 to 1914 अर्ली वेव में. सेकंड वेव में जेट प्लेन्स टेलीविजन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये. थर्ड वेव में माइक्रो प्रोसेसर पीसी इंटरनेट मोबाइल ये 1990s में 2000 में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ शुरू हुआ. पॉलिटिकल लीडरशिप कॉमर्स ट्रेड एंड सर्विसेज कैपिटल इस टेबल में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन सब जो हेडिंग्स हैं इन टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी पॉलिटिकल लीडरशिप कॉमर्स ट्रेड कैपिटल मूवमेंट और माइग्रेशन इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई. तो व्यूअर्स इंशाल्लाह मीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. तो व्यूअर्स एंजॉय करें और बेनिफिट करें इंटरनेट से.